Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic, human resources. As we have completed number of topics before this, now we are coming on the human resources. What is human resources? Human resources, all the people working for a company. ये human resources is basically used as human capital. Human capital, it is an investment of the people in the industry or a company. उनका काम क्या होता है? Human capital is, this is because the implies the people that work. ये वही बंदे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं. These are called human capital. Human resources is also called human capital. So the people that work are a good thing for a business. When we are doing business, we must have the human capital. If we have not human capital, then our business will collapse. Therefore, the human capital is very much important for a business because they add value to it. हर एक बंदे का एक इनपुट होता है और वो इनपुट एक वैल्यू रखता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल है टीचर एक इंडस्ट्री, कॉलेज या यूनिवर्सिटी is also called industry, wherein teachers they are giving their input for the teaching, as well as labor is also called the human capital, ठीक है. It is important that human resources in a company are the best possible because it is the workers that can make the difference. There are many factors to think about when talking of human resources. जब भी human resources की बात आती है तो उसमें workers का जिक्र होता है. इनके बगैर कोई भी चीज़ possible नहीं है. They are the best possible. ये होंगे तो सब कुछ होगा, आपका काम आसान होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी. ये सारी चीज़ें होगी इनके साथ. ये नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा. So the human resources is very much important for companies, industries, and any entity. Without this, no any business can be a best possible. There are two types of the human resources. Number one, the demographics. What about the demographics? Demographics, which is things like the age and sex of the people. It is important that there are both new young people starting and old people with lots of knowledge around a business. अब इसमें दो हैं, एक है यंग, एक न्यू कमर है, और दूसरा है सीनियर जो काम करता है, it is old age. It is also a human resources. And young is also human resources. These are the human capital. दोनों एक ही काम करते हैं. ये जो बंदा है ये विथ एक्सपीरियंस काम करता है, इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और ये जो काम ये 1 घंटे में करेगा, ये बंदा जो यंग है ये 3 घंटे भी लगा सकता है. Therefore, the human resources demographics is very much effective on the human resources. Number two, diversity. In this situation, diversity situation, all type of people are represented equally. अब जैसे हमने ऊपर बात की कि यंग और ओल्ड, इस सिचुएशन में कोई ना यंग है ना ओल्ड है, ठीक है. इसमें सारे एक ही तरह रिप्रेजेंटेड होते हैं, किसी को तरजीह, किसी को कम, किसी को ज़्यादा नहीं दी जाती. इनको भी एक ही सैंपल में लिया जाता है. They are represented equally.
Okay, so now we are coming to the next, that the natural resources. Now the natural resources is what people can use which comes from natural environment. For example, simple एक example है, हवा, पानी, लकड़ी, oil, wind energy, natural gas, iron and coal. These are the natural resources. Those are coming from the natural environment. Without these things, these natural resources, nobody can live. So the human resources and natural resources. Natural resources basically is a dividing line between natural resources and man-made resources. Is not clear cut. Now the natural resources and man-made resources, it is very much difference between these two. Hydroelectric energy is not a natural resource because अब ये जो hydroelectric जो energy है, it is not a natural resource. Basically it comes from the natural resource, but it is not itself a natural resource because the people use turbines, this thing, turbines to convert the energy from moving water. Basically water is natural resources, but the hydroelectric energy is come from the moving water. Petroleum and iron ores are natural but need work to make them into usable. Refined oil, steel, सारी चीज़ें जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, दे आर लाइकली टू बी रिफाइंड फॉर द यूजेबल. जब किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को, पानी का मिसाल ले लें, हम फिल्टर करके पीते हैं, ठीक है. ऐसे ही ऑयल है, ऑयल को भी रिफाइन किया जाता है, बगैर रिफाइन के वो आपकी यूजेबल नहीं होगी. एंड स्टील है, ऑयल एंड पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनको रिफाइन करना लाजिम है, ठीक है जी. एटॉमिक एनर्जी बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द मेटलिक न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक फिशनेबल यूरेनियम एंड पेट्रोलियम. बट नेचुरल रिसोर्स need technically work to make them into these nuclear fuels. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए तो इनको टेक्निकली वर्क की ज़रूरत है, ठीक है. एंड another point, the resource is something that can be used for a purpose. कोई भी रिसोर्स, whatever, वो रिसोर्स जो यूज हो फॉर द पर्पस. फॉर एग्जाम्पल टूल्स एंड मटीरियल्स आर रिसोर्सेज. ये सारा जरिया है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है मेरे पास, अगर ये पेन ना होती तो मैं यहाँ लिख ना पाता. इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स, इट इज़ टूल, ठीक है जी. नंबर 2, द रिसोर्स टाइप एंड डेवलपमेंट्स. एनी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ that can be used for satisfying human wants, human needs. अब ये रिसोर्स है, अब हमारी ख्वाहिश है कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ. बड़ी गाड़ी लेने के लिए मुझे पैसा की ज़रूरत है, पैसा होगा फिर मैं गाड़ी लूँगा. अगर ये चीज़ नहीं होगी मेरे पास, आई कैन नॉट बाय ए कार. नाउ इट इज ए रिसोर्स. यहां पे पैसा क्या हो गया, जरिया हो गया, थ्रू विच आई कैन सेटिस्फाई माई नीड. इट इज ए रिसोर्स. अब रिसोर्स, ये पैसा कैसे आएगा, उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए. ये रिसोर्स है, मैं यहां पे आके आपको लेक्चर देता हूं और ये लेक्चर के मुझे पैसे मिलते हैं, पैसों से मैं गाड़ी खरीद सकता हूं. नंबर 3, इकोनॉमिक्स, प्रॉपर्टीज एंड अपॉर्चुनिटीज विच आर यूज्ड
in the purpose of producing goods. अब इकोनॉमिक में क्या है, ये इकोनॉमिक भी एक रिसोर्स है. इस रिसोर्स के अंदर आ जाती है प्रॉपर्टी. ये होगी तो हम इंडस्ट्री बना सकेंगे. ठीक है, और ये चीज होगी तो फिर हमें एक मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें. उसे इस्तेमाल करने के बाद कैसे इस्तेमाल करेंगे? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स. इस्तेमाल ये होगा कि हम कोई प्रोडक्ट बना लेंगे उसके अंदर. ठीक है, वो प्रोडक्ट कौन सी होंगी? नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, समथिंग दैट इज वैल्यूएबल इन इट्स रिलेटिवली नेचुरल फॉर्म. नंबर 3 है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन कैपिटल. वैल्यूएबल ह्यूमन वर्क पावर. बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो जैसे हम पढ़ के आए पहले कि इट इज द पावर, वर्क पावर बाय द ह्यूमन. Number 4, resource. It is also called in project management. Economic resource used in planning of task. किसी भी काम के लिए हमें पहले तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी. जो भी सोर्सेज होंगे हमें वो इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे. नंबर 5, ये भी रिसोर्स है कंप्यूटर साइंस. अब देखें कंप्यूटर, ये बड़ा अहम सुतून है. ये कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के ज़रिए हम क्या करेंगे? हम अपनी डेटा सेव कर सकेंगे, फाइल सेव कर सकेंगे विच कंटेन्स डेटा लाइक आइकॉन्स हो गए, जो भी होंगे, इमेजेस टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम. हम कंप्यूटर को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी एक ज़रिया है. अगर कंप्यूटर नहीं होगा हम ना कुछ सेव कर सकेंगे, ना कोई डेटा सेव कर सकेंगे और ना ही कुछ ऐसी चीज़ जो हमें काम आ सके.